سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 تاریخ بروز پیر 10واں مہینہ 2022 کو پھر ایک بھائی نے جو ہے توبہ کی ہے باطل عقیدوں سے، جو کہ ولیوں کی کرامت کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے اور علی مرزا کے جال میں پھنس چکے تھے۔ بہرحال ان بھائی کی اصلاح کی کوشش کی اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کی اور انہوں نے بات کو سمجھا اور توبہ کر لی۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سنیں، کاٹ پیٹ نہ کریں اور اپنے دوستوں میں، بھائیوں میں، تمام اپنے ریلیشن والوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ اور بھی جو علی مرزا کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں وہ نکل جائیں، جو باطل عقیدے کو اپنائے ہوئے ہیں وہ نکلیں۔ اگر اس وقت کوئی جماعت حق پر ہے تو اس کا نام اہل سنت و جماعت، سنی، حنفی، بریلوی کے نام سے جس کو جانا پہچانا جاتا ہے، جو بزرگان دین کو مانتے ہیں، جو فاتحہ، درود، نیاز، میلاد کے قائل ہیں۔ اور میں کہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا سچے دل سے وہ نام بھی لیتے ہیں اور سچے دل سے فالو کرتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ خالی نام لیتے ہیں، صرف نام لیوا ہیں، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو صرف نام لیوا ہیں، صرف نام لیوا، باقی کچھ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کو نام لے کر بدنام بھی کرتے ہیں۔ خیر، جو بھائی اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس چینل کے ذریعے آپ حضرات تک وہابی دیوبندیوں کی جو اوریجنل حقیقت ہے، جو ان کا اوریجنل چہرہ ہے، وہ آپ تک پہنچ سکے، آپ تک آ سکے، آپ اس کو سن سکیں اور آپ تمام حضرات جو ہے سن کر فیصلہ کر سکیں۔ اپنے دوستوں میں اس بات کو شیئر کیا کریں اور جتنی بھی آڈیو ہیں الحمدللہ ایک سے ایک جو ہے لاجواب ہیں، ایک سے ایک بہتر ہے۔ ہر ایک آڈیو میں ایک نیا انداز ملے گا، ایک نیا ٹاپک ملے گا، ایک نئے انداز میں ایک گفتگو ملے گی، چاہے موضوع ایک ہی ہو، چاہے کسی ایک ہی عقیدے پر بات ہو، مگر ہر ایک انسان سے الگ نظریے سے، ایک الگ طریقے سے بات ملے گی۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ آگے کی گفتگو سنیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جی کون بھائی جان؟ میرا نام بھائی محمد آصف ہے۔ اچھا، محمد آصف بھائی کہاں سے ہیں؟ میں بھائی ادھر اتر پردیش سے۔ اتر پردیش کون سی جگہ؟ مراد آباد بھائی۔ اچھا، مراد آباد سے ہیں، ماشاء اللہ۔ کس مسلک سے ہیں؟ میں جی بھائی میں مسلک حنفی ہوں۔ اچھا اچھا، حنفی ہیں۔ حنفی میں بھائی حنفی میں کیا، حنفی امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ اس میں دو گروہ ہیں،
देवबंदी बरेलवी इसमें से मैं भाई किसी को नहीं मानता। अच्छा अच्छा, तो जब किसी को नहीं मानते तो फिर आप हनफी कहाँ हुए? क्यों? इमाम हनीफा को मानना हनफी ना मेरे भाई। तो भाई इसमें दो गिरोह है ना मानने वाले, एक बरेलवी कहलाते हैं, एक देवबंदी कहलाते हैं। अब इन दोनों में से किसी एक को पकड़ना जरूरी है। नहीं नहीं, इन दोनों में से किसी को नहीं पकड़ना भाई, दोनों आपस में लड़ते फिरते रहते इसीलिए। तो सुलह कुल्ली है? हाँ हाँ, सुलह कुल्ली है। हम तो इंजीनियर मिर्जा साहब का वीडियोस देखते उसी से फायदा उठाते और क्या, उन्हीं से मसला मसाइल जानते रहते हैं बस। जी फरमाइए। ये जैसे बात था कि ये मतलब जरूरी आपका, मैं वीडियो सुन रहा था, वीडियो देख रहा था, बहुत माशाअल्लाह बहुत बढ़िया वीडियो है आपकी। आप बस आप लोग देवबंदी वहाबी और बरेलवी ये लोग आप लोग लड़ते ही रहते हो हरदम। अच्छा हर वक्त मेरे भाई, ये अच्छी बात थोड़ी ना मेरे भाई। अच्छा अच्छा, तो आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं? बेशक भाई बेशक, एकदम दिल से मोहब्बत करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अपने वालिदैन से भी मोहब्बत करते होंगे? क्यों नहीं, वालिदैन से मोहब्बत तो करते ही। माशाअल्लाह जी। अगर मैं आपके वालिदैन साहब को कुछ ऑल फॉल बकूं तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा मेरे भाई। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छा, किस वजह से बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? कोई कुछ कहे, गलत कहेगा, अगर गलत कहेगा तो अच्छा किसी को नहीं लगेगा ना। है? अगर कुछ गलत कोई किसी के वालिदैन को कहेगा तो उसको अच्छा थोड़ी ना लगेगा। हाँ हाँ, किस वजह से नहीं लगेगा? अच्छा, मुझे वो पता है कि अशरफ अली थानवी के बारे में बताएंगे इधर, अभी ये गुस्ताखी किया था, मैं मानता हूँ गुस्ताखी किया था, वो है ही जाहिल, उनके बारे में नहीं कुछ कहना। एकदम अशरफ अली थानवी और थैलवी, नहीं वो थानवी हो या कोई भी हो भाईजान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं खाली बरेलवी मसलक से पहले था, उसके बाद जब देखा ये सब ज्यादा कुछ हो रहा है, बिदत हो रहा था, इससे मैं छोड़ के किनारे चला गया। मेरे घर वाले तो सब बरेलवी ही हैं, बरेलवी बस मैं ही अपना किनारे पड़ा रहता हूँ बस। अच्छी बात है। जैसे इसमें क्वेश्चन थी कुछ कि एक हदीस है, तो मुझे लग नहीं रहा कि आप मुरादाबाद के रहने वाले हैं। नहीं, मुरादाबाद के रहने वाले हैं नहीं अभी, मतलब हम रहते कहीं और। मुरादाबाद तो हमारा घर था, लेकिन हम वहाँ छोड़ के चले आए इधर। अच्छा, कहाँ पे हैं आप? लखनऊ के साइड है हम। लखनऊ साइड? अच्छा, मगर मुझे लग रहा है कि आपकी पैदाइश मुरादाबाद की नहीं है, कहीं दूसरी जगह की है। हाँ हाँ, वहाँ मेरा घर है, दादी दादा वहाँ रहते हैं, अभी भी है घर। अच्छा, तो पैदाइश कहाँ की है आपकी? पैदाइश मेरा इधर क्या मुरादाबाद का है, लेकिन मैं बचपन में ही जब साल भर का था तभी से आगे इधर पढ़ता लिखता इधर ही हूँ, लखनऊ में हूँ। अच्छा, साल भर से ही पढ़ने लगे थे? नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ साल भर का जब था। अच्छा, तो मैं लखनऊ में हूँ साल भर से, जब मैं साल भर का था ये बताते पापा, उनको खुद थोड़ी नहीं याद है। अच्छा मतलब घर तो असली यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर घर वगैरह बन चुका है, तब लखनऊ में ही रहते हैं। तो पता है कि आप मुरादाबाद के अगल बगल के है, इसलिए बताया हूँ मुरादाबाद। चलिए कोई बात नहीं है भाईजान, बस मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कहें पहले, फिर मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा, मुझे आपको बताना चाहूंगा। आपने मेरी बात को वहीं रद्द कर दिया, आपने सुनना पसंद नहीं किया। नहीं, आप बोलिए, मैं सुनना पसंद करूंगा इंशाअल्लाह। तो मैं मालूम यही कर रहा था कि मैं अगर आपके वालिद साहब को आपके सामने गलत कहूँ, कुछ ऑल फॉल बकूं, तूफान बदतमीजी बर्पा करूं आपके सामने आपके वालिदैन के तरफ से, तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और बर्दाश्त करेंगे तो पता ये चलता है कि आपको अपने वालिद से मोहब्बत नहीं है। यही है ना? हाँ, यही है। तो जो हमारे नबी के लिए बकवास करता है, जो हमारे नबी के लिए कुछ ऐसे जुमले इस्तेमाल करता है जिससे उनकी शान व अजमत जो है घटती हुई नजर आती है, उनकी तौहीन होती है, समझ रहे हैं? और हम खामोश हैं, हम खामोश हैं। तो क्या ये हमारी खामोशी बताती है कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं? नहीं बताती। नहीं बताती ना, क्योंकि
इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता। बेशक, सही बात। देवबंदियों को ही ले लीजिए, मैं देवबंदियों को गलत कहता हूँ और खुलेआम गलत कहता हूँ, और वो गलत कहता हूँ जो गलत है, जो गलती है, जो गलती की है वो गिनाता हूँ। तो इन देवबंदियों को ना हजम नहीं होता, बौखला जाते हैं, यहाँ तक के बदतमीजी पर आ जाते हैं, गाली गलौच भी करने लगते हैं। हाँ, देखा था तो वीडियो। मजबूरन मुझे भी कुछ ना कुछ कहना पड़ जाता है ना। जब सामने से बदतमीजी करेगा, कुछ नहीं सुनेगा, तो फिर यकीनन मतलब कुछ ना कुछ तो बोल ही देगा। मैं भी इंसान हूँ, और क्या, और मैं सादा इंसान हूँ, सादा इंसान, एक आम इंसान हूँ। हाँ, मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि मैं आलिम दीन हूँ। मैं आलिम दीन नहीं हूँ, मैं आवाम में से हूँ। ठीक है भाईजान। भाई, उलमा अहले सुन्नत की जूतियां सीधी करने वाला एक अदना सा इंसान हूँ, मगर रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। हाँ, तो रसूलुल्लाह का गुलाम हो और अपने आका की तौहीन सुने, ये कैसे हो सकता है? सही बात है ना। हाँ, तो हाँ बोलिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता था कि ये लड़ाई कोई जमीन जायदाद की नहीं है, कोई मालो दौलत की नहीं है। समझ ना भाईजान। हाँ भाई। हाँ, ना ये कोई खानदानी लड़ाई है। खानदानी लड़ाई तो नहीं है ना ये। नहीं, ये ईमान और कुफ्र की लड़ाई है। ईमान और कुफ्र की लड़ाई, समझ रहे हैं। आली हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह उन्होंने खुद नहीं कहा सब देवबंदियों को काफिर। किसने? आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह उन्होंने खुद सब देवबंदियों को काफिर। यहाँ अभी ये बात तो आई नहीं, क्योंकि मैं खुद ये नहीं कहता कि तमाम देवबंदी काफिर है। मेरा कोई भी क्लिप ऐसा दिखा दो जिसमें मैंने ये कहा हो कि तमाम देवबंदी काफिर हैं। तो आप पहले सलाम क्यों नहीं करते? सबसे जब पहले सलाम नहीं करते, इसका मतलब यही है कि आप सबको पहले काफिर ही समझते हैं, इसलिए नहीं सवाब कर सलाम करते। उसका अकीदा मालूम हो, उसके बाद आपने मेरे दिल की बात कैसे जान ली? तो आपने सलाम किसी को नहीं करते? बहुत सारी वीडियोस हैं, एक नहीं बहुत सारी दिखा सकता हूँ इस पे। तो मैं बिल्कुल दिखा सकते हैं, मगर आपने ये कैसे जान लिया कि मैं आपको काफिर समझ रहा हूँ? तो आप सलाम नहीं करते इसीलिए ना, और सलाम का जवाब नहीं करते की बात छोड़िए। आपने मुझे सलाम किया, मैंने आपके सलाम का जवाब नहीं दिया, इसलिए कि मैं पहले जान लूं, पहचान लूं सामने वाला कौन है। तो जो बरेलवी होगा उसी को आप सलाम करेंगे? कौन से? मैं बिल्कुल टनाटन सुन्नी को और एकदम पेबर गुलामे रसूल को सलाम करता भी हूँ, उसके सलाम का जवाब देता भी हूँ। इसके अंदर कहीं तो नहीं लिखा है अपनी किताबों में? एक मिनट, ये मेरा अपना अमल है ना, अपना अमल है। शरीयत का फतवा ये है कि अगर किसी ने सलाम किया सामने से और आप नहीं जानते हैं तो सलाम का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, मगर मेरा तकवा ये है कि मैं जानबूझकर उसका सलाम का जवाब इसलिए नहीं देता कि मुझे लगभग 90 से 95% लोग बदमज़हब कॉल करते हैं। बदमज़हब, अच्छा जी। समझ रहे हैं? हाँ। इसलिए मैं सलाम का जवाब नहीं देता हूँ। और जब कोई मेरा मोमिन भाई होता है, जब कोई हुजूर का गुलाम होता है, तो मजा आता है बात करने में। उसका सलाम भी, उसके सलाम का जवाब भी देता हूँ और पहले सलाम करने की कोशिश भी करता हूँ। ठीक है। ये तो मालूम होगा ना, पढ़े लिखे होंगे तो, शरीयत और होती है ना। हाँ। तकवा एक अलग चीज है, फतवा एक अलग चीज है ना। शरीयत कहती है कि अगर किसी ने सलाम किया और आपको मालूम नहीं है कि वो कौन है, तो जवाब दे दो। ये फतवा है शरीयत का, ये फतवा है, ये शरीयत है। मगर तकवा ये है कि पहले जान लो, क्योंकि मुझे अक्सर लोग बदमज़हब कॉल करते हैं। सही है, ज्यादातर तो ही करते होंगे। हाँ, तो मेरा अपना ईमान ये कहता है, ये शरीयत नहीं कहती। बात समझ रहे हैं? ये तकवा है। समझ रहा हूँ आपकी बातों को एकदम परफेक्टली। समझ गए ना? बिल्कुल, इस पे कोई हुक्म भी नहीं आ सकता।
ये मैं मगर एक मिनट हजरत, थोड़ी सी और बात कह दूं। ओके बोलिए। अगर आप मेरी कई ऑडियो में ये जरूर सुन लेंगे, जैसे मैंने कई बदमजहब को ला इल्मी में जवाब दिया, जैसे आपने सलाम किया और आपने कहा मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, ऐसा मैंने जवाब दिए हैं। मगर वो क्या कहते हैं, अब तो तेरा निकाह टूट गया, अब तो तेरा ईमान खत्म हो गया क्योंकि तूने हमें जवाब दे दिया। तो मैंने इस पर एहतियाती बरती है, अच्छा, ताकि अब कोई बदमजहब ये बात कहने के लिए खड़ा ना हो। अच्छा, पहले मैं जान लूं कि कौन है कौन नहीं है, समझ रहे? इसलिए मैं किसी बदमजहब का, किसी बदअकीदे का सलाम का जवाब नहीं देता हूं। हाँ, अगर कोई सामने से कोई अहले ईमान है, मोमिन है, हुजूर का गुलाम है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, मैं उसके सलाम का जवाब देता भी हूं और उसको सलाम करता भी हूं। सही जी। और कोई शिकायत हो तो बताएं। ये जैसे कहना था कि अगर कोई बरेलवी हो तो वही हक पे है कि कोई और भी, बस बरेलवी सारे हक पे हैं और दूसरा कोई नहीं हक पे है? उलमाए अहले सुन्नत, जिसको बरेलवी नाम से जाना जाता है, जो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का सच्चा मानने वाला है, जो आला हजरत के बताए हुए फरामीन को फॉलो करता है, ठीक है। आला हजरत के बताए फरामीन तो नहीं करते हैं ना यहाँ पर। बात मेरी सुन लीजिए, बात मेरी सुन लीजिए, मैं कहाँ कह रहा हूँ। मैंने बताया ना हनफी में दो हैं, एक देवबंदी एक बरेलवी। पहले मेरी बात को सुनिए, क्या आला हजरत का अपना घर का दीन है बनाया हुआ? नहीं, अपने घर का तो नहीं है ना। आला हजरत ने तो वही बताया ना जो रसूलुल्लाह ने बताया है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सैयदों की ताजीम ही आला हजरत ने बताई है, और ये बदमजहब बदअकीदे आज भी किसी सैयद की ताजीम नहीं करते। बात आ रही समझ में? हाँ। तो आला हजरत का अपने घर का दीन नहीं है। और बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं, ये कहते हुए नजर आते हैं, भाई आला हजरत ने तो ये कहा कि मेरा दीनो मजहब। तो कब्र में भी सवाल होगा कि तेरा दीन क्या है, तेरा रब कौन है, और तू इस रजुल के बारे में, इस मर्द के बारे में क्या कहता है, क्या कहता था। समझ रहे? तो क्या दीन उस अकेले का है? क्या उसका कोई नया दीन है? क्या उसका कोई और रब है? नहीं ना। नहीं। मुराद यही होता है कि किस मजहब से ताल्लुक रखने वाला है, किस दीन से, किस धर्म से ताल्लुक रखने वाला है। माँ रब्बू का, तेरा रब कौन है? बंदा कहता है मन दीनू का, दीन इस्लाम, मेरा दीन जो है वो इस्लाम है। ठीक है। माँ रब्बू का, तेरा रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरा जो सवाल है ये हुजूर के ताल्लुक से है। उनका जलवा दिखाया जाएगा, है ना। बंदे की ईमानी कैफियत जैसी होगी वैसी हुजूर का दीदार कराया जाएगा, है कि नहीं है? हाँ। तो ये मामला अलग है, बात बढ़ती चली जाएगी अगर मैं इधर बढ़ा। इधर छोड़िए। हाँ, एक सवाल था वो भी पूछना था कि तो मैं इसको पूरा कर दूं। हाँ, पूरा कीजिए। तो मैंने ये कहा कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के रास्ते पर, रास्ता इसलिए कहा कि हम कहते हैं मसलक आला हजरत, तो आला हजरत का रास्ता वही है जो सहाबा इकराम का रास्ता है, जिस पर सहाबा इकराम चले हुजूर के कहने से। ये रास्ता फिर जिस पे तबे ताबईन ताबईन है ना, जितने बुजुर्गाने दीन, ठीक है, अहले बैत अथार जितने भी चलते चले आए। फिर हुजूर गौस आजम को ले लीजिए, ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह अलैह को ले लीजिए, साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को ले लीजिए। हमारे रामपुर में बहुत सारे अल्लाह के वली हैं, हाफिज शाह जमालुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, सदरगढ़ साहब हैं, मौलवी साहब हैं, और बेशुमार औलिया इकराम हमारे रामपुर में मौजूद हैं। ठीक है। जिस रास्ते पर ये चलते चले आए हैं उसी रास्ते को आला हजरत ने इख्तियार किया, इसीलिए हम कहते हैं मसलक आला हजरत। इस पे मैं एक बात टोकता हूँ 2 मिनट के लिए। टोको, बोलो। जैसे कि आप बोले हैं सहाबी का रास्ता है, ये तबा ताबाइन का रास्ता है आला हजरत का, तो ये तो नहीं है। जैसे कि
کہ صحابہ کوئی جاتے تھے قبر پہ قبر سے مانگنے, کوئی صحابہ گئے تھے قبر سے مانگنے؟ اس کا جواب میں حدیث سے دوں یا پھر وہابی دیوبندی کے گھر سے دوں؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں ایک حدیث, صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے 1010 ہے. سن رہے ہیں؟ ہاں میں سن رہا ہوں آپ کی بات کو. ہاں 1010 حدیث ہے 1010. وہاں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے, روایت کوئی اور کہہ رہے ہیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ٹاپک کا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے دنیا میں, جب تھے اس دنیا میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کراتے تھے بارش کے لیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو گیا, دنیا سے چلے گئے اس دنیا سے, تو وہ ان کے چاچا سے جا کے دعا کراتے تھے وسیلے سے, ان کے چاچا سے. اگر ایسا ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مزار پہ جانا چاہیے تھا, ان کے قبر کے پاس جا کے ان سے دعا کرنا چاہیے تھا. ان کے چاچا کے پاس کیوں گئے؟ ایسا ہے تو مطلب قبر پہ جا کے مانگنا چاہیے. اس کا جواب بھی میں دے دیتا ہوں. صحابہ اکرام نے حضور کا وسیلہ لگایا تھا. پہلے کے لوگوں نے, جو حضور سے بھی پہلے کے لوگ ہیں, حضور کے آنے سے پہلے اس وقت بھی حضور کے نام کا وسیلہ لگا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی تھی. معلوم ہے؟ بتائیے. نہیں, ہاں کا جواب دیں گے تو مزہ آئے گا. نہیں معلوم ہے. نہیں معلوم ہوگا. چلیے کوئی بات نہیں ہے, قرآن پاک کی آیت بھی پیش کر دوں گا بہرحال میں. جی ہاں سمجھ رہے ہیں؟ بتائیے. حضور کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی حضور کا وسیلہ دیا گیا ہے. ہاں, حضور کا وسیلہ حضور کے آنے سے پہلے بھی دیا جاتا تھا. یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حضور کا وسیلہ پیش کیا ہے. اب دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ اگر قبر پہ جان, ارے چپ تو یار, میں کسی بد مذہب کو کچھ بتا رہا ہوں لوگوں کے لیے. بد مذہب نہیں ہو میرے بھائی میں, بد مذہب آپ نے, ایک منٹ, آپ نے جو یہ کہا کہ اگر قبر پہ جانا جائز ہوتا یا درست ہوتا تو پھر حضور کے جو چاچا تھے ان کے پاس کیوں گئے؟ تو یہ اس لیے گئے کہ نبی کا وسیلہ لینا تو جائز ہے ہی ہے. ہاں بتائیے. مگر جو نبی کے قریب ہے, ٹھیک ہے, ہاں, جو نبی کے قریب ہے, جو نبی کا خاص ہے, ٹھیک ہے, جو اچھی کوئی بزرگ ہستی ہے جو ہم سے بڑی ہے, بات کو سمجھتے رہیے گا. ہاں بتائیے. اور سب سے کھلا بات یہ کہہ دوں میں, ایک دم کلیئر کٹ, کہ غیر نبی کا, کیا غیر نبی کا وسیلہ بھی جائز ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ثابت کر دیا کسی غیر نبی کا وسیلہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں. نہیں تو وہ زندہ تھے, ان سے دعا کرایا نا, دعا کرایا. خاموش رہے نا. صحابی کو بھی میں پیش کروں گا. ہاں, آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ وہاں غیر نبی کا وسیلہ بھی پیش کیا گیا. ٹھیک ہے, تو صحابہ اکرام سے یہ بات ثابت ہو گئی آپ کے کہنے کے مطابق. ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی بے شک. ہاں, اب میں صحابی کا ایک کال پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے, صحابی رسول کا. بتائیے. حوالہ نکالو. ہاں کہ اچھا ابھی آیا, آ جاؤ بھائی جان. ہاں آپ دیکھیے, سنیے. بتائیے. صحابی رسول قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر بارش مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, اور یہ سن 18 ہجری کی بات ہے. قحط سالی کا عالم ہو گیا تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے. حضور کی بارگاہ میں جا کے بارش کی دعا کر رہے ہیں.
ہاں تو اب یہ حضور کے صحابی کا حضور کی قبر پہ جانا اور دعا کرنا، یا رسول اللہ ہم جو ہے قحط سالی کے عالم میں ہیں، یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، یا رسول اللہ بارش کے لیے جو ہے دعا کریں، ٹھیک ہے، وہاں جا کے جس حالت میں بھی انہوں نے کہا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں تو یہ صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں مانگی انہوں نے نماز پڑھ کے، حضور کی ہی قبر پہ کیوں آئے؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ، اچھا، حدیث نمبر 32,600 32,600 جی۔ اچھا اچھا، ان کو تو آپ مانتے ہوں گے، مصنف ابی ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کو؟ مانیں گے کیوں نہیں، وہ تو ہاں یہ تو مسلم ہیں، دیوبندی بھی ان کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اور آپ بھی مانتے ہیں۔ ہاں آگے بتائیے۔ اب دوسرا حوالہ سن لیجئے، یہ میں نے صحابی رسول سے دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ مولوی قاسم ننوتوی صاحب جو مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی لڑائی مٹانے گئے تھے، ان کی مدد کی کہ نہیں کی انہوں نے؟ اور یہ قبر سے کیسے پہنچ گئے، اور ان کو بتایا کس نے قبر میں آ کے؟ کون؟ مولوی قاسم ننوتوی۔ چلیے ایک اور حوالہ سن لیجئے، تاریخ ابن کثیر، وہابیوں کی کتاب ہے یہ، تاریخ ابن کثیر۔ ہاں تفسیر ہے نا، تفسیر تاریخ، ارے وہ ہماری ہے یار، وہ سنیوں کی ہے، تفسیر کبیر وہ سنیوں کی ہے بھائی۔ اچھا، یہ تاریخ ابن کثیر ہے، تو سنیوں کی ہے تو ہمارا ابن تیمیہ کا جو شاگرد ہے نا حافظ ابن کثیر، ہاں یہ اس کی کتاب ہے۔ اچھا، ہاں تو یہ اپنی کتاب میں بتا رہا ہے کہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی بارش کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے تھے۔ جی تو مطلب مان لیجیے وہ تو نبی تھے، نبی تھے نا۔ اب آپ کی یہ بات آ گئی کہ وہ نبی تھے، اور اولیاء کی بات آ رہی ہے اب یہاں پر آ گئی۔ سب سے میرا ایمان کہاں ختم ہو گیا؟ ایک منٹ سوال تھا، ایک منٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مومنوں کے لیے کہا کہ تم قبرستان جایا کرو، تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو جب ایک گناہگار کی زیارت کا حکم ہے، ٹھیک ہے، ہاں، ایک گناہگار کی جب زیارت کا حکم ہے تو پھر ایک ایسے اللہ والے کی زیارت کا حکم کیوں نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندہ ہے؟ تو زیارت کرنے میں کوئی حرج نہیں، جا کے وہاں پر مانگنا، وہاں پر سجدے کرنا، وہاں پر ایک منٹ کبھی حج گئے ہو؟ ہاں گئے ہیں، نہیں گئے نہیں، جان رہے، سوری غلطی سے نکلے، گئے نہیں، جان رہے، کوئی بات نہیں، غلطی ہو، میں کیا بولوں، میرے ابو امی گئے ہیں۔ ایک منٹ، کوئی بات نہیں، میرے ابو امی گئے ہیں۔ چلیے آپ کے ابو گئے ہیں، کبھی صفا مروہ کی پہاڑی پہ دوڑے ہیں آپ کے ابو؟ ان کو پتا ہوگا، اتنا نہیں پتا ہے، گئے ہوں گے۔ اچھا آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں؟ میں؟ ہاں میں تو کوئی عالم وغیرہ نہیں ہوں، بس دین کی تھوڑا بہت تفصیل پڑھتا رہتا ہوں، بس زیادہ نہیں۔ تفصیل پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں پتا ہے کہ صفا مروہ کی پہاڑی پہ ہر حاجی کو دوڑنا ہوتا ہے؟ وہ تو مجھے پتا ہے میرے بھائی، وہ بات کر رہا ہوں، تو میرے ابو دوڑے تھے کہ نہیں یہ بتا رہا ہوں میں۔ ارے یار آپ کے ابو بھی ضرور دوڑے ہیں، ابھی فون کر کے معلوم کر لو۔ ہاں دوڑے ہوں گے، حج پہ جو جگہ دوڑے گئے۔ ہاں اب ان سے پوچھا نہیں تھا کیسے دوڑے تھے، کب دوڑے تھے، یہ سب۔ دیکھیے ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو نشانی ہے نا، یہ نشانی ہے، کچھ نشانی ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے پر واجب قرار دے دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں کی جو یہ امتحان والی گھڑی تھی، یہ قیامت تک کے مسلمان اس کو جو ہے ادا کرتے رہیں گے، مگر یہ مالک نصاب پر ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں اور میں ایک دو نہیں، پہلے بات تو سن لیجیے اب میری، پہلے یار اب ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اتنے حوالے آپ کو دے سکتا ہوں، اتنا حوالے دے سکتا ہوں
कि आपके ऊपर मैं रख दूं तो उठा ना जाए। एक और हवाला सुन लीजिए छोटा सा। एक सवाल का आप जवाब दे तो मैं इससे इंजीनियर का वीडियो देखना तौबा कर लूंगा, फिर से आ जाऊंगा अपने। भाई आप तौबा करें ना करें, मैं आपके तौबा करवाने के लिए हवाला नहीं दे रहा हूँ। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है जो अभी तक किसी ने नहीं जवाब दिया। मैंने एक नहीं हजारों क्वेश्चन का जवाब दिया जाए या ना दिया जाए वो एक अलग बात है। क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन के जवाब ऐसे भी होते हैं कि शैतान एक अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचा और उसने कहा कि तुम अल्लाह को एक मानते हो, बताओ क्या दलील है। तो उन अल्लाह के वली ने 360 दलीलें पेश की और वो 360 की 360 उसने शैतान ने रद्द कर दी। बड़े परेशान थे, क्या करूं, मगर उनके पीरो मुर्शिद ने जब उस तरफ तवज्जो की तो कहा कि ये शैतान है, शैतान बहुत बड़ा आलिम है, ये दलीलों से नहीं मानेगा, ये हर दलील को जो है रद्द कर देगा। इसके सामने दलील पेश करने की जरूरत नहीं है, इसको कहो मैं बगैर किसी दलील के खुदा को एक मानता हूं। बात आई समझ में? हर सवाल का जवाब नहीं होता, समझ रहे हैं? और हर सवाल का जवाब हर कोई दे भी नहीं सकता, वही देगा जो वहां तक की नॉलेज रखता होगा। हाँ, मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है ना भाई, इसका बस बता दे। बताएं। जो एक मैं वाकया सुन रहा था यूट्यूब पे, अभी आप तो ये कह रहे थे कि मैं किसी तरफ नहीं हूँ, मगर आप मिर्जा के निकले। मिर्जा का मैं वीडियो देखता हूँ, उसी वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं, मिर्जा को सुनकर आपने उसको फॉलो किया कि नहीं किया? हाँ, किया ना। उसको नहीं फॉलो किया, हदीस को फॉलो किया भाई। वो हदीस बताता है, हदीस नहीं बताता है, वो चोर है। हाँ, वो चोर है यार, वो किसी मसलक को नहीं मानता भाई। हाँ, वो किसी मसलक को नहीं मानता और वो इनमें से भी निकल गया है। वो पहले कादियानियों में गया, वहाबियों में गया, पता नहीं कहाँ होके अब वो खुद एक अपना अलग टाइटल पैदा करने वाला है, मसलक पैदा करने वाला है। अब वो कहने लगा है न मैं वहाबी हूँ, न मैं वाबी हूँ, मैं हूँ, हाँ, मैं इल्मी किताबी हूँ। हाँ, समझे? वो एक नया मसलक तैयार कर रहा है। लेकिन भाई वो हदीसों से बात करता है। फिर वही बात, हदीस तो सबके पास है, कौन बगैर हदीस के बात करता है? अच्छा, इसका जवाब दीजिए आप। ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, इनका एक वाकया सब बताते हैं कि मतलब मुसलमानों और ईसाइयों में मुनाजरा हो रहा था। अच्छा। उसके बाद ईसाइयों ने पूछा कि हमारे ईसा अफजल हैं तुम्हारे नबी से, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अच्छा। अफजल ईसा अलैहिस्सलाम है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं। आप घर जा रहे थे? हेलो जी, मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं। बारिश हो रही थी, हम मस्जिद में थे जी। हाँ, तो बोले। उन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अफजल हैं क्योंकि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे और आपके नबी ने नहीं किया जिंदा। तो वहाँ पर कहीं से अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आए, उन्होंने कहा कि तुम मेरे नबी के बारे में बात करते हो, मैं उनका गुलाम हूँ, मैं खुद जिंदा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे नाम पे मुर्दे जिंदा हो जाए, तो कई 100 मुर्दे तुरंत जिंदा हो गए वहां पर। ऐसा हो सकता है? ये कहीं से साबित है ये बात कि मतलब कोई शख्स, कोई वली मुर्दों को जिंदा कर दे? हाँ, मैं 2 बातें यहाँ अभी पूछना चाहूंगा, क्या जवाब देंगे उन 2 बातों का? बताइए आप। मौजज़ा जानते हैं? मौजज़ा किसको कहते हैं? हाँ, मौजज़ा जानता हूँ। किसको कहते हैं? जो नबियों से हो। मतलब क्या हो? मौजज़ा है क्या? मौजज़ा मतलब कुछ जो ऐसी चीज जो कोई आम आदमी ना कर सके, कोई करामात, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, चांद के 2 टुकड़े कर दिया, ऐसा कुछ? नहीं, ये सही तारीफ नहीं की। मौजज़ा उसको कहते हैं जो अक्लो गुमान से भी दूर हो। हाँ, सही है। जिसको कोई समझ ना सके, अकल ना समझ सके, वो अकल में भी ना आ सके। इसी तरह करामत क्या होती है? करामत वही चीज, करामत भी है, मतलब ये वलियों से होती है, ये सुना हूँ, आप लोग बताते हैं। ऐसा हम लोग बताते हैं? हाँ, आपके उलमा लोग बताते हैं। अच्छा, तो ये करामत है क्या? करामत हक है कि नहीं? वलियों की करामत हक है कि नहीं? वलियों की करामत ऐसी नहीं हक है कि मतलब वो उड़े चाहे मुर्दा। वलियों की करामत को तो देवबंदी भी इनकार नहीं करते यार। मैं देवबंदी नहीं हूँ ना। वलियों की करामात ऐसी थोड़ी ना होती मेरे भाई की वो उड़ेंगे, मुर्दे को जिंदा कर देंगे, तो अल्लाह के हाथ में। सूरह हज की अल्लाह का हाथ है? हाँ है, बस अल्लाह कर सकता है ना ये मुर्दे को। आपने कहा कि अल्लाह के हाथ में है, तो अल्लाह का हाथ है? हाँ बेशक अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के हाथ में और किसके हाथ में? अल्लाह का हाथ है,
हाथ है मतलब नहीं, आपने कहा कि अल्लाह के हाथ में है, तो अल्लाह का हाथ है। नहीं, वो हाथ नहीं, अल्लाह का नहीं याद भैया, कुफ्र हो जाएगा अगर अल्लाह का हाथ मैं कहूंगा तो फिर आपने तो कहा है अल्लाह का हाथ है। नहीं, मतलब अल्लाह कर सकता है ये सब, सॉरी अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला कर सकते हैं, अल्लाह ताला कर सकते हैं ना। सूरह हज की आयत 72। अब बस मुझे वो बाद वाली बात का जवाब दे दीजिए। तो हाँ, वलियों की जो करामत होती है उसको आप नहीं मानते हैं शायद? मानता हूँ, लेकिन वैसी करामत नहीं मानता जैसे उड़ने वाली। ये कौन सी बात हो गई कि उड़ने वाली और ये वाली और वो वाली है? भाई करामत होती ही करामत है, करामत वही होती है जिस तरह नबियों का मौजज़ा है जो कि किसी की समझ में ना आ सके। हाँ, तो लेकिन ये नहीं मान सकता जो किसी के सोचो गुमान में भी ना आ सके, समझ से बाहर हो, ठीक है, उसी तरह ये वलियों की करामत होती हैं। ठीक है, तो फिर यार इन वलियों की करामत पर क्यों झगड़ा कर रहे हो आप? एक सवाल का जवाब दीजिएगा मेरे। ये दे तो दिया ना, एक दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, और कोई दूसरा सवाल है? किसी सहाबी से साबित है कि उन्होंने कभी मुर्दा जिंदा किया? ये बताइए आप, किसी हदीस में सुने हैं कि किसी मुर्दे को किसी सहाबी ने जिंदा कर दिया? ऐसा है, जब सहाबी नहीं जिंदा कर सकते तो वली की क्या बस की है? फिर वही बात, ये तो आपका एतराज हो गया, ये तो बुग़्ज़ है ना आपके दिल में। बुग़्ज़ नहीं भाई, बुग़्ज़ है। वलियों से हम भी मोहब्बत करते हैं। नहीं रखते हो तुम वलियों से मोहब्बत? वलियों के सरदार से ही जब बुग़्ज़ है तो वलियों से क्या रखोगे यार मोहब्बत? तो इसके सबूत दीजिए आप मोहब्बत वालों को देखिए जिंदा कर सकते। मैंने कहा ना आपको कि मैं आपको मनवाने के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ये जो है जवाब दे रहा हूँ। मनवाना मेरा मकसद नहीं है। नहीं, मैं मानूंगा जब मुझे। अरे मैं मनवा ही नहीं रहा हूँ ना, मैं मनवा ही नहीं रहा हूँ आपसे। मैंने कहा कि हर सवाल का जवाब नहीं होता। अच्छा, तो हर सवाल का जवाब नहीं होता। तो ये और अगर कोई ऐसे सहाबी होंगे भी तो मुझे उनका इल्म ना हो। अच्छा, ये नहीं हो सकता, सही है, समझ रहे हैं? और जो गौसे आजम ने कहा कि मेरे नबी तक कहाँ पहुंच रहा है, मैं वो नबी का गुलाम हूँ, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ मेरे नबी ने मुर्दे जिंदा किए हैं, बल्कि उनको चश्मादीद गवाह बनाकर उनको वो जिंदा करामत जो है दिखाई। अगर वो बताना चाहते तो बताते कि हाँ हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चों को जिंदा किया था। सही है, ये तो मुझे पता है, मगर नहीं उन्होंने कहा। क्यों नहीं कहा? उन्होंने क्यों ये सब दिखाया? ईमान लाने के लिए उनका मतलब, वो ईमान लाता, ऐसा हो सकता है। फिर ये मन घड़त है ना मेरे भाई। ये मन घड़त नहीं है। अगर तुम नहीं मानते हो तो मत मानो यार, मुझे नहीं मनवाना है ना आपसे। तो ऐसी कोई दलील दीजिए जिससे मैं दलील नहीं दे सकता हूँ ना भाईजान। कुरान से कुरान से साबित कर सकता हूँ। मेरा इल्म उतना नहीं है जो मैं आपको जो है उतना कुछ बताऊं। मैं एक अदना सा इंसान हूँ, एक आम इंसान हूँ। हाँ, अगर मेरे इल्म में कोई ऐसी बात होती, हो सकता है कि जो है मेरे इल्म से ये सारी बातें बाहर हैं, मैं वहां तक मेरी पहुंच ना हो। कुछ कुरान में ऐसा दलील नहीं है कि मतलब ऐसा हो कि अल्लाह ताला वलियों को दे रहे हैं इतना ताकत की वली ऐसा। देखो, एक चीज बता सकता हूँ, हो सकता है कि आपके ईमान की पुख्तगी हो और आपकी किस्मत की दुरुस्तगी हो जाए। मेरे रब ने फरमाया है कि जो मेरे वलियों से बुग़्ज़ रखेगा, अदावत रखेगा, उससे मेरा ऐलान जंग है। बेशक, ये मुझे भी पता है ना। तो कि वलियों की करामत से लड़ाई करके क्या तुम वली से लड़ाई नहीं कर रहे हो? ये भाई देखिए, ये उनकी तरफ झूठ निस्बत है ना। तो अरे भाई, वलियों की विलायत जो है ये भी हक है, और उन वली की विलायत तो ऐसी है कि तमाम वलियों के सरदार हैं। समझ रहे हैं बात? तमाम वलियों के सरदार हैं। बात आ रही समझ में? हाँ, वो तो तमाम वलियों के सरदार हैं। तो फिर तुम उनकी इस करामत को जो है ठुकरा रहे हो, और ये वो करामत है जो इंसान के जो है सोचो गुमान से बाहर हो। तो यही तो वो करामत है। करामत कहते ही उसको है जो दिमाग में ना फंसे, जो अकल में ना आ सके, जो अकलों से बाहर हो, जो सोच समझ से भी बाहर हो। तो इसी की तो दलील चाहिए ना मेरे भाई। भाई तो मैं कह रहा हूँ ना, फिर वही बात कि इसी की दलील चाहिए। भाई मैंने पहले ही एग्जाम्पल पेश कर दिया कि शैतान ने 360 जो है
ये आपने बात सही कहा। मैं दलील दे देता हूँ कि एक मिनट। शैतान ने जो सवाल किया था कि रब को एक मानते हो, क्या दलील है, यही कहा था। बात आ रही समझ में? हाँ। रब को तुम एक मानते हो तो क्या दलील है? तो उन्होंने दलीलें पेश की। कितनी की थी? 360 दलीलें पेश की थी। हाँ, तो उन्होंने मगर किसी एक दलील को भी नहीं माना, तुम्हारी तरह रद्द करता रहा। आपने दलील नहीं दिया भाई कि मैं रद्द करूं। वही बात तो मैंने तो कहा ही नहीं कि मैंने तो ये बात समय पहले बता दी कि मैं तुम्हें जो है मनवाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, और मनवाने के लिए ना ये हवाला पेश कर रहा हूँ। और वलियों की जो करामत है वो भी मैंने बता दी। जिस तरह नबी का मौजज़ा वो है जो इंसान के जो है सोच, गुमान, फिक्र से भी बहुत ज्यादा दूर हो, जो किसी की अकल में ना आ सके। ठीक है? इसी तरह ये वलियों की जो करामत है ये भी ऐसी ही है। एक भाई कुरान की एक आयत है। हाँ बताओ। सूरह हज आयत नंबर 73 या 72 पे है। 72-73 दोनों में है। अच्छा। कि अल्लाह ताला वहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिसको तुम लोग पुकारते हो, हाँ, जिसको तुम लोग पुकारते हो, अच्छा, तो सब मिलकर एक मक्खी को पैदा नहीं कर सकते। अगर मक्खी उनकी कोई सामान, कोई चीज लेके चली जाए तो सब मिलके वो सामान नहीं ला सकते। अच्छा, ये किसके लिए हो रहा है? अल्लाह के सिवा कोई ऐसा करामत नहीं कर सकता, अल्लाह और उनके नबी के सिवा, क्योंकि नबी के ऊपर वही नाजिल हुई करती है, उनके पास उतना मौजज़ा होता है। लेकिन वलियों के पास वो तो हमारी तरह इंसान है। वली तो हमारी तरह इंसान है। जो नेक बनता है उन्हीं को वली कहा जाता है, अल्लाह के दोस्त। कई जगह कुरान में आयत आई है कि मोमिन अल्लाह का दोस्त है। तो जो शख्स अच्छा है, जो शख्स शरीयत पे अमल कर रहा है, वली है। वली मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि वो कब्रों में से मतलब इंसानों को जिंदा करता चले, ऐसा। उनका तो इतना करामत सब बताते हैं ना बरेलवी उलमा कि खत्म ही ना हो। उतना तो हदीस में हो जिनका उतना करामत बताते, इतने यहाँ जिंदा कर दिए। एक बार जा रहे थे तो उनके नाना दौड़ा रहे थे, तो एक बार कब्र वालों को बुलाया, कब्र वाले उठ जा, तो 200-300 कुछ कई हजार कब्रे से वो मतलब उठ गए, मतलब वो जिंदा हो गए। वो लोग दौड़ने लगे उनके साथ साथ। फिर ऐसी करामत बताते कि आदमी को चक्कर आ जाए। इसीलिए आदमी को बरेलवियत छोड़ रहा है आदमी, इसीलिए यही सब जो गलत बता रहे हैं। अच्छा हुआ तुमने बरेलवियत छोड़ी, तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है बरेलवियत में। नहीं, अच्छा हुआ तुमने बरेलवियत छोड़ी, तुमसे बरेलवियत पाक हुई। खैर, दूसरी बात ये कि तुमने एक आयत बताई, आयत पढ़ के जरा बताओ, जरा क्या आयत है वो? नहीं, मुझे उसका वो तो नहीं याद है, अरबी नहीं। जब अरबी याद नहीं है, उसका उर्दू याद नहीं है, तो मालूम है वो आयत किन के लिए है? बुतों के लिए है। बुतों के लिए है? हाँ, जरा उसकी तफसीर तो पढ़ो जरा जाके। तुम चाहे देवबंदियों की पढ़ लो और चाहे तुम जो है वहाबियों की पढ़ लो। वहाबियों से देवबंदियों से मतलब है नहीं मेरे भाई। फिर वही बात, तो तुम्हारे उसकी तो कोई तफसीर है नहीं जो तुम उसकी तफसीर पढ़ोगे। मिर्जा नहीं भाई, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तफसीर है। हाँ, तो फिर उनकी तफसीर जरा निकालो और मेरे सामने पढ़ो जरा। अभी तो है नहीं मेरे पास। अभी यार जब नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं तो थोड़ी कर सकता हूँ। उसकी तफसीर में ये है कि वो बुतों के लिए नाजिल हुई है। हाँ, बुतों, वहाँ बुत मुराद हैं, जहाँ जो तुम बोलना चाह रहे हो ना, वहाँ बुत मुराद हैं। हाँ, अच्छा जी। तो मतलब वो बुतों के लिए था ये? हाँ, बुतों के लिए है। वहाँ कहाँ लिखा है कि जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह वाले हैं, तुम उनसे ही जो है कुछ मदद नहीं ले सकते, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते? भाई कुरान तो कह रहा है कि जो अल्लाह का वली है, ठीक है, जो अल्लाह का वली है उससे मदद तलब कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह के जो वली होते हैं वो मदद करते हैं। ये आप बता दीजिए, आप बता दीजिए इसका मतलब क्या बोलते हैं, कौन सी सूरा में है, कौन सी आयत है, ये बता दीजिए। आप मैं मान जाता हूँ। तब फिर ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ कुरान कह रहा है कि वलियों से मदद मांगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। ये सूरह कहफ की आयत है, आयत नंबर 17। जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, हाँ रुको, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए न तुम कोई वली पाओगे ना मुर्शिद। जिसे अल्लाह हिदायत देता है वो वली और मुर्शिद के दामन में रहता है, और जिसे रब गुमराह करता है उसका ना वली ना मुर्शिद। समझे? वहाबी बेपीर होते हैं, बेनूर होते हैं, बेदरगाह होते हैं। समझे? बेदरगाह इलाही से निकाले हुए हैं ये लोग।
ये अगर दलील सही है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सूरह कहफ, हाँ, दरगाह इलाही से निकाले हुए हैं ये लोग, मैं कह रहा हूँ, समझे, कि ये अल्लाह वालों की ताजीम नहीं करते आपकी तरह। और भी मैं हवाले बताऊंगा आपको। सूरह कहफ कहाँ पर था? सूरह कहफ आयत नंबर 17। अभी मैं आपको बता देता हूँ। और भी हवाले दूंगा मैं इसमें के। हाँ है तो सूरह कहफ आयत नंबर 17। जरा उसको पढ़ो उसको और फिर उसकी तफसीर निकालो। तफसीर नहीं है मेरे पास अभी मैं यही है आयत, मुझे समझ तो आ गया है। और क्या बता रहे थे आप? ये सही तो है, माशाअल्लाह है? आपने जो पढ़ा सही है। मैं तो ये समझ रहा था आप जा रहे हो। अच्छा जब से मैं चला भी जाता तो अभी सही रहता, और हम फिर काफी देर मस्जिद में बैठे रहे, बारिश हो रही थी देर से। आओ चलो चलो फिर सुबह को ले लो तो। हाँ ठीक है। हाँ जी। मतलब बुलवाना है क्या ना? अभी रहने दो। हाँ रहने दो। चलो फिर सुनो, आप दूसरी आयत सुने जब तक उधर तुम कुछ निकाल रहे हो, ठीक है? हाँ बताइए अब बताइए दूसरी आयत बताइए। दूसरी आयत बताइए। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं तुम्हें बता दूं अहले ईमान के मददगार कौन कौन है, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा मददगार अल्लाह है और उसका रसूल और ईमान वाले जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, ठीक है, और अल्लाह के हुजूर झुके हुए हैं। समझ रहे हैं? तुम्हारा मुसलमानों का, मोमिनों का मददगार कौन है? अल्लाह है, उसका रसूल है, ईमान वाले। तो ये गौसे आजम जो हैं नमाज अदा करते थे कि नहीं करते थे? करते थे, एकदम बेशक। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये नमाज अदा करते थे नहीं करते थे? करते थे। उनसे ज्यादा कौन? जो भी जितने भी अल्लाह के वली हैं ये शरीयत के कानून को फॉलो करके वली बने हैं या फिर शरीयत की पामाली करके, शरीयत को छोड़ के? शरीयत पे अमल करके भाई। तो फिर ये अल्लाह हमारे मददगार हैं कि नहीं है? कुरान की आयत के हिसाब से तो है ये आयत मैंने कुरान से सबूत दिया है, मगर तुमने कहा है कि बुलाओ जिसको बुलाते हो, पुकार लो जिसको पुकारना है। तो यार पहले बात को समझो कि कहाँ कौन सी बात हो रही है। वहाँ बुत मुराद है यार उस आयत से। हाँ अच्छा। यहाँ तो खुल्लम खुल्ला आयत बता रही है, मगर वहाँ तुमने ये बताया। ये कौन सी आयत बताया आपने भाई? ये हाँ, अल-माइदा आयत नंबर 55। अल-माइदा आयत नंबर, हाँ सूरह माइदा आयत नंबर 55 है। अच्छा बेश सही। ये मतलब इंजीनियर साहब बस ये इंजीनियर एक नंबर का चोर है, समझे? हाँ। और इसका कोई बुजुर्ग हो ऊपर तो बताओ। यही है सबका बुजुर्ग जो नीचे वाले हैं। सब कुछ छोड़ दिया इसने। हाँ, कभी देवबंदी में जाता था, कभी वहाबी में आता था, कभी कादियानी में रहता था, कभी कहीं रहता था। अब इसने एक अपना गिरोह बना लिया है और 4 बाई 4 के कमरे में बोलता रहता है। 4 बाई 4। हाँ। अच्छा ऐसी बात है जी यार। ये बंदा लेकिन अच्छा है। अरे यार मैं तो आपको भी सही कह रहा हूँ, मैं आपको कौन सा गलत कह रहा हूँ भाई? अच्छा और बुरा तो जब पता चलता है ना। नहीं, जैसे कि सारे हदीसे से बात करता था इसीलिए उसका वीडियोस देखा। फिर वही बात। अच्छा आपने अच्छा कैसे कह दिया? आपने उसको बढ़ता है? अच्छे इंसान की पहचान कैसे चलती है? चलिए उसकी पहचान बता दीजिए। अरे उसकी अखलाक यही है कि मतलब अच्छा काम करे। आप उसके साथ रहे हैं, सफर किया है आपने?
नहीं किया। फिर आपको कैसे पता? मैं इंडिया में हूँ, पाकिस्तान में। तो फिर आपको उसकी अच्छाई का कैसे पता? अरे अच्छे और बुरे का इस बात से पता नहीं चलता कि वो नमाज पढ़ता है, वो ज़कात देता है, वो रोजा रखता है, वो हज करता है। इस बात से कहाँ पता चलता है अच्छे और बुरे का यार? नहीं मतलब जो उसके अरे आपने उसके साथ वक्त बिताया हो, उसके साथ आपने सफर किया हो, समझे, उसके साथ आप रहे हो, तब पता चलता है ये कितना अच्छा और कितना बुरा है यार। सही है। आपने दूसरी कैसे अच्छाई कर दी उसकी? नहीं, कई उलमा है जैसे ये अलग तरीके से बताते हो, दलील से बताता था, इसीलिए उसका वीडियो देखते 2-3 साल से गुमराह हो गए हम भी। दलील हर किसी के पास है। एक और बेचारा गुमराह हो गया था, हमारे पास का था बंदा, समझे, वो भी अली मिर्जा की गुफ्तगू सुनता था बंदा, शाहवेज नाम है उस बंदे का, भाई का। अल्हम्दुलिल्लाह आज तौबा करके फिर से अहले सुन्नत व जमात में दाखिल है। अच्छा। रो रहे थे, बोले यार हजरत मैं भटक गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। फिर से उन्होंने तौबा करके अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल हैं। सुनिए वो ऑडियो आपने? हाँ सुनी थी थोड़ी बहुत। और एक बात ध्यान रखो, अगर मैंने अभी तक आपसे कोई सवाल नहीं किया है, मैंने अभी तक आपसे कोई अपने तरफ से सवाल नहीं किया है, एक में ही अटक जाओगे अगर मैं कर दूं तो। सही बात है, कुछ सही बात है। बताओ, असल में मैं छोटा सा सवाल पूछता हूँ, हाँ 2 सवाल पूछूंगा बस, ठीक है, 2 सवाल। हाँ। ये बताइए कि गुस्ल में कितनी सुन्नतें हैं और क्या क्या हैं? सुन्नतें भाई फर्ज पता है, सुन्नत भी पता, बता देता हूँ आपको। हाँ सुन्नतें बता दीजिए, देख के मत बताना, ऐसे बताइएगा। नहीं देख के नहीं बताता, फर्ज बताऊँ कि सुन्नतें? सुन्नत भाई। अच्छा फर्ज कितने हैं? फर्ज 3 है। अच्छा ठीक है, सुन्नतें बताइए आप कितनी है और क्या क्या है? वजू जैसे बनाया जाता है भाई, वजू में जितने सुन्नतें हैं उतने सुन्नतें उसमें भी हैं। हाँ बताइए, गुस्ल में क्या क्या है सुन्नतें हैं? ये पहले बिस्मिल्लाह कर लें, ये सुन्नत है। नहीं तरतीब वाले से बता दीजिए। वजू की नियत करें, बिस्मिल्लाह करें ना, ऐसे थोड़ी। हाँ गुस्ल में अच्छा सुन्नतें हैं कितनी सुन्नतें, ये जोड़ के नहीं बैठा हूँ, अब सुन्नतों से बनाता हूँ वजू। कितनी सुन्नतें जोड़ के नहीं बैठे हैं हम। अच्छा इतना तो बता सकते हैं ना कितनी है? कितनी सुन्नतें हैं? हाँ जोड़ के बता देते हैं आपको 2 मीटर की। अरे यार यही नहीं पता कितनी सुन्नतें हैं। नहीं फराइज पते हैं कितने हैं, लेकिन अच्छा, ये सुन्नत चलिए फराइज बता दीजिए, फराइज के फराइज पहले भाई, ये पहले कुल्ली किया जाए पूरा, मतलब गलाला मुंह के, ये जो गले के पास हड्डी होती है, अच्छा, यहाँ पे पानी पहुंचाना होता है। अच्छा उसके बाद ये नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना है और बढ़िया से नाक साफ करना है जी, और पूरे बदन को पानी से भिगाना है। कितना? पूरा मतलब अपनी सर से लगाए पूरा नीचे पैर तक पूरा भिगाना, हर जगह का बदन भीगा होना चाहिए पानी से। हाँ मतलब आप ये कहते हैं कि एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। बस यही सही है, ऐसा बोले। अगर एक बाल बराबर जगह खुश्क रह गई, मैं ये नहीं अरबी वगैरह नहीं पढ़ा हूँ ना, मैं बस क्या बोलता हूँ, ये देखिए आपको उसने बहका दिया है और आप पढ़े लिखे नहीं हैं, और जितनी भी ये बातिल जमाते हैं ये ऐसे ही लोगों को अपनी टीम में लेती हैं जो बेचारे इल्म से कोरे होते हैं। ये है सच्चाई, ये है हकीकत। मेरे अब्बू अम्मी तो बहुत कई बार तो मार भी खा चुका है इस चक्कर में, बहस करते। तो मेरे भाई आप उल्टी सीधी बातें करोगे तो माँ बाप तो मार ही देंगे ना, आप तो उनके लिए औलाद हो। एकदम कट्टर वाले टनाटन है ना, इसलिए। बहरहाल मैंने पहले ही आपसे कह दिया था, मैं मनवाने के लिए आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। सही बात है भाई, माफ करना। और आप कभी ये ज़हन रखो कि हर सवाल का जवाब होता, तो हर सवाल का जवाब नहीं होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनका जवाब मतलब आसानी से नहीं दिया जाता है। जिस तरह शैतान जो है सवाल कर रहा था कि बताइए तुम रब को एक मानते हो, हमारा और आपका सबका यही अकीदा है ना कि रब एक है, बेशक यही अकीदा है ना, रब 2 तो है ही नहीं। और हमें तो ज्यादा दलीलें भी नहीं मालूम, और उन अल्लाह के वली ने 360 दलीलें पेश की, वो क्या क्या की होंगी, सही बात है। फिर भी उनको रद्द कर दिया। जो नहीं मानेगा ना वो नहीं मानेगा, सही बात। नहीं मानने वाले को हम नहीं मनवा सकते, इसलिए मैं किसी को मनवाने के लिए बात नहीं करता। ठीक है भैया, आपकी तरह कोई दलील नहीं देते, बहुत सारे मौलाना से पूछा ये सब बात तो गुस्सा हो जाते थे, इसलिए और गुमराह हो रहे थे। आपकी तरह कोई पहले बता दिया होता तो नहीं देखते वीडियो, लेकिन वो आपकी तरह कोई बताया नहीं। बहुत सारे उलेमा हमारे यहाँ मौलाना उनसे पूछते थे तो सब तो भड़क जाते बस।
जवाब देखिए, देने के लिए। भड़कने ही की बातें होती हैं। असल में मेरा काम ही ये है कि जो प्यार से बात करता है मैं उससे प्यार से बात करता हूँ, और जो बदतमीजी करने लगता है तो फिर थोड़ा बहुत देना बनता हाँ भाई, क्योंकि मैं भी सादा आदमी हूँ ना, सादा आदमी। तो फिर उसको उसकी खुराक पहुंचानी पड़ती है। आप मुफ्ती वगैरह है क्या? नहीं भाई, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सादा आदमी हूँ भाई। हाँ, आप बोल रहे थे मतलब मैं मुफ्ती की मीम से भी वाकिफ नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, मैं एक बहुत कम इल्म इंसान हूँ, ला इल्म इंसान हूँ, एक अहले सुन्नत का एक जर्रा हूँ। तो मैं कुछ बात बताना, हाँ, गुसल में जो सुन्नतें हैं वो पूछ रहा था, क्या क्या है बताइए। पहले तो भाई बिस्मिल्लाह नियत करते हैं वजू की। चलिए मैं बता देता हूँ, आपको मालूम नहीं है, आप याद कर लीजिएगा। देखिए, जब हम गुसल के लिए जाते हैं तो हाथ धोते हैं। पहले अव्वल गट्टो तक हाथ धोना, ठीक है। दूसरे इस्तंजा करना, ठीक। और जिस्म पर जो निजासत लगी है, नापाकी लगी है, उसको धो देना, ठीक है। सही है? हाँ सही है। तीसरे पाकी की नियत कर लेना, चौथे वुजू कर लेना, ठीक है। पांचवें पूरे बदन पर 3 मरतबा पानी बहाना, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये पांच सुन्नतें हैं। जी। अब एक दूसरा सवाल मेरा और था, मैंने कहा था कि मैं 2 सवाल करूंगा आपसे, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मगर शायद जब ये बड़े बड़े मुफ्तियों से नहीं बचता है तो मैं आपसे क्या करूं? पूछिए देखते हैं, अगर आता है अगर बताएंगे तो उसका एक और जवाब मिल जाएगा हमें। चलिए। आप असर या ईशा की पहली 4 सुन्नतें पढ़ रहे हैं, ठीक है। असर या ईशा की, असर या ईशा की, हाँ, 4 सुन्नतें पहली। उसमें कायदा उला में, यानी बीच के कायदे में जो आप बैठेंगे तो वहां दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने तशहुद पढ़ने के बाद में दरूद शरीफ पढ़ लिया, दुआ पढ़ ली। फिर आपको ख्याल आया कि ये चौथी रकात नहीं है, दूसरी रकात है, यानी ये कायदा उला है, कायदा अखीरा नहीं है, बीच का कायदा है। फिर आप खड़े हुए, ठीक है। फिर आपने जो है बगैर सजदा साहब किए ही लास्ट में सलाम फेर दिया, सजदा साहब नहीं किया, तो आपकी नमाज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सजदा सवा वहां पर वाजिब हो गया ना। अच्छा, कैसे? क्योंकि मतलब अत्तहियात के बाद अगर वो क्या बोलते हैं, दुरूद अगर पढ़ देंगे, दुरूद का थोड़ा एक ही लाइन पढ़ेंगे, अगर कहाँ तक? अल्लाहुम्मा सल्ली अला तक पढ़ देंगे तभी भी नमाज दोहराना पड़ेगा। पूरी बात बताइए, कहाँ तक पढ़ना है? ये मतलब दुरूद अगर पढ़ देंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अगर यहाँ तक पढ़ दिया यहाँ तो उसके बाद सजदे सवा वाजिब हो गया। हाँ, मगर मैं बात बता दूं, जहन क्लियर कर दूं, जो गैर मौक़िदा सुन्नतें हैं, ठीक है, इसमें तशहुद के बाद दरूद शरीफ पढ़ना अफजल है, दुआ पढ़ना अफजल है, ठीक है। यहाँ सजदा साहब नहीं करेंगे, यहाँ नमाज हो जाएगी। जी। अच्छा, सुभान अल्लाह। ये बड़े बड़े देवबंद के मुफ्तियों से नहीं बचता है। अच्छा, तो किस बात के मुफ्ती हो? अब मैं क्या बताऊं कि किस बात के हैं, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं क्या करूं सवाल। जब ये बड़े बड़े मुफ्तियों से नहीं बचता है तो फिर मैंने दोनों सवाल किए, दोनों आपसे नहीं बते। नहीं बते। फिर तो ये सवाल करना छोड़ दो, वो सवाल करना सिखाते हैं, वो तुम्हें बताते हैं ये पूछो ये पूछो ये पूछो, तोते की तरह रटाते हैं तुम लोगों को, समझे? ये तुम खुद नहीं बोल रहे थे, ये वो बोल रहा था। समझ रहे हो आप मेरी बात? सही है। हाँ, ये अली मिर्जा बोल रहा था तुम्हारे अंदर का, तुम नहीं बोल रहे थे। तुम्हारा इल्म मैंने देख लिया ये 2 ही सवाल में, दोनों में से एक भी तुमसे नहीं हल किया गया। और आपने मुझसे इतने सवाल किए, इतनी बातें पूछी, तो तुम्हारी बातों का जवाब देने का था, मैंने जवाब दिया। सही है। और जो तुम वलियों की करामत पर हमला कर रहे हो, तो वलियों की करामत कहते ही उस चीज को है कि जो इंसान की सोच में ना आ सके,
सोच में ना आ सके, सही है। तो यार हम सोच कैसे सकते हैं भाई? नबियों का मौजज़ा होता ही वो है। अच्छा, आजकल हम पेड़ देखते हैं ना, जिस पेड़ को उखेड़ देते हैं क्या वो दोबारा जम जाएगा? नहीं जमेगा। हुजूर ने तो पेड़ को बुलाया और फिर कहा कि वापस चला जा। सही है। मैं वो सब लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ निशानी बता रहा हूँ। समझ गया भाई मैं आपकी बातों को एकदम, बेशक। अब दूसरी बात सुनिए, सऊदी अरब में एक बाग ऐसा है जिसमें गुठली ही नहीं होती है। बाग ऐसे गुठली नहीं होती? हाँ। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल हैं। ये जहाँ रहते थे उसने शर्त रख दी थी कि इनको मैं तब छोड़ सकता हूँ कि तुम यहाँ बगीचा लगाओ और बगीचा लगाने के बाद उस पे जो है रात रात में फल आ जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बाग तैयार हो जाए, समझे? तो वो बगीचा लगाया गया, वहाँ खजूरें बोई गई, तो उसने जो है ना वो गुठलियां निकाल ली थी उसमें से, गुठलियां। अच्छा। हाँ। वो मौजज़ा, वो भी मौजज़ा था। मौजज़ा तो है ही। हाँ, तो उसने कहा इसमें तो गुठलियां ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया जब तुम ले गए निकाल के तो गुठली कहाँ से होती? अच्छा, आम के अंदर गुठली नहीं थी? आम नहीं यार, जो खजूर होती है ना, खजूर। अच्छा अच्छा, खजूर खजूर, अच्छा। हाँ, खजूर। हो सकता है मैंने आम बोल दिया हो। नहीं, आपने कुछ नहीं बोला था, मुझे बगीचा मैंने बोला था, बगीचा। हाँ बगीचा, गुठली से मतलब मुराद लगा आम का गुठली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस खजूर में गुठली है ही नहीं, क्योंकि वो खेत मालिक ने, बाग मालिक ने मतलब उसकी गुठली निकाल ली थी। आज भी उसने सोचा कि यह आएगा ही नहीं, गुठली होगी तो आएगा, क्योंकि फल तो गुठली से आता है ना। सही है भाई, जब हम बीज लगाते तभी तो आता है, गूदा हम कहीं भी डालते तो आज थोड़ी जाएगा, नहीं आएगा। तो उसने वो मतलब निकाल ली थी। तो आज भी ऐसा आ रहा है बिना अबू जहल को बहुत सारे मौजज़े मेरे नबी ने दिखलाए। हाँ सही है, मगर वो नहीं मानने वाला था, नहीं माना, मर भी गया। किसी को मनवाना मेरा काम नहीं है भाईजान, बस बताना काम है मेरा। काम है सिर्फ बताना, मनवाना मेरे बस की बात नहीं है। मानना हो तो मानेगा, नहीं तो जा भाड़ में। ना मैं मनवाने के लिए किसी से कोई बात करता हूँ। सही बात है। हाँ, चलिए इंशाअल्लाह आज के बाद तो आप तौबा कर लीजिए। आप तौबा, एकदम तौबा मेरे भाई, दिल से तौबा है। हाँ, पढ़ लीजिए, मैं गवाह बन जाऊंगा आपका। पढ़िए, अल्लाह से दुआ करिए, इस्तगफार करिए। चलिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा भाईजान? पढ़ लेता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाईजान, सच तो ये है कि आपको दुरूद शरीफ भी ठीक से याद नहीं कराई मिर्जा अली मिर्जा ने। क्यों, सही पढ़ा क्या? हाँ, आपने ठीक से नहीं पढ़ा दुरूद शरीफ। बहरहाल याद कीजिएगा इसको ठीक से, मुझसे याद कर लीजिएगा, मैं याद करा दूंगा आपको। अच्छा अच्छा, पढ़िए कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह से अब दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें। या इलाहुल आलमीन, मेरे अब तक के जितने गुनाह हैं, जितने में बातिल मजहब की तरफ जो अब तक तेरे और तेरे महबूब के लिए जो गुस्ताखियां और गलत बातें या जो मन घड़त बातें मैं अपने दिल में रखा हुआ था, उनसे मैं तौबा करता हूँ। आमीन। आप कहें कि या अल्लाह, मैं तेरे और तेरे रसूल की और तेरे वलियों की शान में जो गुस्ताखी है उससे तौबा करता हूँ। या इलाहुल आलमीन, मुझे इन तमाम बातिल बदमज़हब फिरकों से अपने महबूब के वसीले से बचा ले। मुझे इन शैतानी फिरकों से दूर रख। मुझे इहदिन सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। मुझे इहदिन सिरातल मुस्तकीम पर चलने की
तौफीक अता फरमा, तौफीक अता फरमा, और इन बातिल फिरकों से बचने की तौफीक अता फरमा, और इन बातिल फिरकों से बचने की तौफीक अता फरमा। मुझे मुझे तेरे हबीब से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, तेरे हबीब की क्या क्या बोले, मोहब्बत में मोहब्बत करने की तौफीक अता तौफीक फरमा। अता फरमा। तेरे जो नेक वली हैं, तेरे जो बंदे हैं, तेरे जो नेक वली है और तेरे बंदे हैं, उन तमाम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। उन तमाम से मोहब्बत करने का तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, मैंने तेरा कलमा पढ़ा, मैंने तेरा कलमा पढ़ा, तेरे रसूल का कलमा पढ़ा, तेरे रसूल का कलमा पढ़ा, तेरे ऊपर तेरे रसूल के ऊपर ईमान लाया, तेरे ऊपर तेरे रसूल के ऊपर ईमान लाया। तो जिस रसूल पे मैं ईमान लाया उनसे सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। जिन रसूल पे ईमान लाया, ईमान लाया, उनसे सच्ची मोहब्बत करने का तौफीक अता फरमा। पहले अल्लाह ने नमाज से पहले, रोजे से पहले, सब चीज से पहले अपने हबीब से मोहब्बत का ऐलान फरमाया है कि पहले उनसे मोहब्बत करो, इनकी इज्जत करो, तौकीर करो, ठीक है, फिर नमाज पढ़ो। तो जब तक हुजूर से मोहब्बत नहीं होगी, जब तक नमाज नहीं होगी, वो भी अमल कार खैर नहीं होगा। सही है भाई। जो या इलाहुल आलमीन, जो कहा गया है, जो कहा गया है, जो दुआ की है, इस दुआ के मांगने में, कहने में जो भी गलती हुई है उनको माफ फरमा, और जो भी कुछ कहा सुना गया है, या इलाहुल आलमीन, कुछ कहने सुनने में जो गलतियां हो गई हों, उन कोताहियों को माफ फरमा के अपनी बारगाह में उसको कबूल मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, इन भाई की तौबा को कबूल फरमा और इनको फिर से पाको साफ फरमा दे और अपने महबूब की मोहब्बत इनके दिल में पैवस्त कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मेरे और मेरे जितने मोमिन भाई हैं उन तमाम के गुनाहों को माफ फरमाए और मेरी और आपकी इस तौबा को कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब आप इस तौबा पर अटल रहें। आज के बाद किसी बदमजहब का अगर आपके तरफ कॉल आए, मुझे लाइन पर लें, ठीक है, इंशाअल्लाह मैं उससे बात करूंगा। बहकाने वाले बहुत आएंगे, बहकाने वाले बहुत आएंगे, बेशुमार आएंगे, समझ रहे हैं भाईजान। अब आप अपने वालिदैन के पास जाएं, अपनी वालदा के पास जाएं, अपने अब्बू के पास जाएं, उनके जाके पैर छुएं। माँ बाप की कदम बोसी करना ये शरीयत में है, मालूम है आपको? हाँ हाँ है। जाइए वालिदैन से अपने माफी मांगिए और कह दीजिए कि मैंने उस बातिल मजहब को छोड़ दिया है। बेशक बेशक, ठीक है। हाँ हाँ सही है। इंशाल्लाह दुआ देंगे वो, और आप मेरी बात भी कराइए अपने वालिद साहब से। अच्छा देखते हैं। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। देखिए आपको जो भी कोई बहकाए, मुझे आप कॉल करें, चाहे वो देवबंदी हो, वहाबी हो, या फिर अली मिर्जा का कोई टट्टू हो। हाँ। अच्छा, इंडिया में भी उसके मतलब आदमी लोग हैं क्या? मिर्जा के बद मजहबियत हर जगह है। अच्छे लोग हैं तो बुरे भी हैं। सही है। बुरे हैं तो अच्छे भी हैं। समझ रहे हैं भाईजान? सही है। और एक निशानी बता दूं कि ये लोग सैयदों की ताजीम नहीं करते। ये बात ध्यान रखना। ये लोग सैयदों की ताजीम नहीं करते हैं। नहीं करते। हाँ। जब नबी को आम आदमी मानते हैं तो सैयदों की कहाँ ताजीम करेंगे? जी। खैर ठीक है, फिर फोन रखता हूँ भाईजान। ओके ओके, सही बात। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है। हाँ ठीक है भाई। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला इस तौबा पर आपको कायम दायम रखे। और आप मुझसे वादा करें, जब भी कोई आपको बहकाएगा मुझे फौरन याद करें। बेशक बेशक याद करेंगे आपको एकदम। ठीक। चलिए, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे।
آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔